Hello everyone. Today we are going to do worksheet of NCERT class 5th EVS chapter number 2, a snake and snake charmer. Question number 1, select the correct option. First one, in which of the following states is the art of नाग गुम्फन used? नाग गुम्फन ये जो आर्ट है ये इनमें से कौन से स्टेट में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, बी पंजाब, सी आसाम एंड डी मेघालय. Answer is A. Gujarat. Next one. Snake charmers keep the snakes in a dash. Snake charmers snakes को किस में रखते हैं? Option A. Box, B. Cage, C. Bamboo basket and D. All of these. Answer is C. Bamboo basket. Third one. Kalbelia is a kind of dash. Kalbelia इनमें से क्या है? Option A. Dance form, B. Musical instrument, C. Design and D. Song. Answer is A. Dance form. Next one. Which of the following was used by snake charmers to make the snakes dance? Snake charmers snakes को डांस कराने के लिए इनमें से क्या यूज करते हैं? Option A. Bean, B. Flute, C. खंजरी and D. तुम्बा. Answer is A. Bean. Next one. Snake charmers consider dash as their treasure. स्नेक चार्मर्स इनमें से किसे अपना ट्रेजर मानते हैं? ऑप्शन ए बीन, बी स्नेक्स, सी प्लांट्स एंड डी ऑल ऑफ दीज. आंसर इज बी स्नेक्स. नेक्स्ट वन. मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन कलबेलिया डांस आर मेड अप ऑफ डैश. कलबेलिया डांस में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? ऑप्शन ए ड्राइड क्यूकम्बर, बी ड्राइड स्पंज गर्ड, सी ड्राइड गर्ड and D. dried wood. Answer is C. dried gourd. Next one. How many types of poisonous snakes are found in India? इंडिया में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 3, B 4, C 5 and D 7. Answer is B 4. Last one. What is the other name of the Dubois snake? Dubois snake इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सॉ स्केल्ड वाइपर, B. saber-tooth viper, C. Russell's viper and D. none of these. Answer is C. Russell's viper. Question number 2. Fill in the blanks. First one. Aryanath has learned the art of playing dash from his family members. Answer is Bean. आर्यनाथ ने अपने फैमिली मेंबर से बीन बजाना सीखा था. Next one. Kalbelias are also known as dash. कलबेलिया और कौन से नाम से जाने जाते हैं? Answer is snake charmers. Third one. Snake charmers make dash from the plants collected from the forest. Snake charmers जो plants forest से collect करते हैं उनसे वो क्या बनाते हैं? Medicines. Next one. In past, villagers used to call dash when someone had been bitten by a snake. पहले गांव में अगर किसी को सांप काट लेता था तो किसे बुलाया जाता था? Answer is snake charmers. Next one. Dash dance has movements similar to the dance of the snake. Answer is Kalbelia. Kalbelia dance has movements similar to the dance of the snake. Snakes जिस तरह से डांस करते हैं उसी तरह की मूवमेंट्स कलबेलिया डांस में भी होती है. Last one. Snake bite can even cause dash on the spot. Answer is death. सांप के काटने की वजह से डेथ भी हो सकती है. Question number 3. Match the following. In column A, names of animals are given and in column B, their uses are given. You have to match the animals with their uses. First one, cow, match it with E, gives us milk. Next one, horse, match it with A, carries load. Third one, hen, match it with B, gives us eggs. Fourth one, sheep, match it with C, gives us wool. And last one, fish, match it with D, source of food. Question number 4. Write true or false. First one. Poisonous teeth of the snakes are known as fangs. सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उन्हें fangs कहते हैं. This is true. Next one. Snake charmers know how to remove the poisonous teeth fangs of the snakes. Snakes के जो poisonous teeth होते हैं उन्हें किस तरह से निकालना है वो snake charmers को पता होता है. This is also true. Third one. Bishnois are the people who make the snakes dance by playing the bean. जो लोग बीन बजाकर सांप को नचाते हैं उन्हें बिश्नोइज कहते हैं. This is false because they are known as Kalbelias.
Fourth one, snake charmers or Kalbelias used to gift snakes to their daughter when they got married. स्नेक चार्मर्स जो होते हैं उनकी बेटी की जब शादी होती है तो वो उन्हें गिफ्ट में स्नैक्स देते हैं. दिस इज ट्रू. लास्ट वन, ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस. सारे स्नैक्स जहरीले होते हैं. दिस इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. फर्स्ट वन, हु आर कल्बेलियाज. कल्बेलियाज किसे कहते हैं? आंसर इज कल्बेलियाज आर द पीपल हु मेक द स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन. जो लोग बीन बजाकर सांप को नचाते हैं उन्हें कल्बेलियाज कहते हैं. नेक्स्ट वन, व्हाट आर नाग गुम्फन. नाग गुम्फन क्या है? आंसर इज नाग गुम्फन आर स्पेशल डिजाइंस यूज्ड इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एंड एज वॉल डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया. नाग गुम्फन एक स्पेशल तरह की डिज़ाइन होती है जो रंगोली, एम्ब्रॉयडरी में यूज़ की जाती है और सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में घर की दीवारों के डेकोरेशन में भी यूज़ की जाती है. नेक्स्ट वन, व्हाई डिड फार्मर्स यूज टू कॉल स्नेक चार्मर्स. फार्मर्स स्नेक चार्मर्स को क्यों बुलाते थे? आंसर इज फार्मर्स यूज टू कॉल स्नेक चार्मर्स टू कैच द स्नेक फ्रॉम देयर फील्ड्स. फार्मर्स अपने फील्ड्स में अगर कोई भी सांप आ जाता है तो उसे पकड़ने के लिए स्नेक चार्मर्स को बुलाते थे. फोर्थ वन, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन बीन पार्टी. बीन पार्टी में कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं? आंसर इज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बीन, तुम्बा, खंजीरी एंड ढोल आर यूज्ड इन बीन पार्टी. लास्ट वन, नेम 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स फाउंड इन इंडिया. इंडिया में जो 4 तरह के पॉइजनस सांप पाए जाते हैं उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. आंसर इज कोबरा, देन कॉमन क्रेट, नेक्स्ट वन रसेल्स वाइपर, डुबोया and last one is saw-scaled viper. Of 5 are poisonous snakes found in India. Question number 6. Answer the following questions in long. First one, how did snake charmers used to earn their livelihood? Snake charmers अपना पेट पालने के लिए किस तरह से पैसे कमाते थे? Answer is snake charmers used to move from village to village carrying snakes in bamboo baskets. They stopped at some places for the snake show by playing their beans. They also carried some medicines from plants collected from forest. They used to help people who needed those medicines. In return, people would give them some money and food grains. In this way, they earned their livelihood. Snake charmers snakes को बाम्बू बास्केट में रखकर एक गांव से दूसरे गांव जाते थे. फिर वहां पर रुककर वो स्नेक्स का शो करते थे. स्नेक चार्मर्स जंगल से कुछ प्लांट्स कलेक्ट करके उनसे मेडिसिन भी बनाते थे और जिन लोगों को उसकी ज़रूरत होती थी उन्हें वो मेडिसिन्स वो देते थे. मेडिसिन्स के बदले में लोग उन्हें पैसे या तो फिर अनाज देते थे. इस तरह से स्नेक चार्मर्स अपनी लाइवलीहुड अर्न करते थे. नेक्स्ट वन, हाउ डिड स्नेक चार्मर्स यूज टू हेल्प पीपल. स्नेक चार्मर्स लोगों की किस तरह से हेल्प करते थे? आंसर इज स्नेक चार्मर्स यूज टू गिव मेडिसिन्स टू दोज हु कुडंट रीच टू डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स. जो लोग डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाते थे स्नेक चार्मर्स उन्हें मेडिसिन्स देते थे. दे ऑल्सो गेव मेडिसिन्स टू क्योर स्नेक बाइट्स. अगर किसी को सांप काट लेता था तो उसे भी ठीक होने के लिए वो मेडिसिन्स देते थे. समटाइम्स दे हेल्प पीपल बाय कैचिंग पॉइजनस स्नेक्स. कभी कभी वो जहरीले सांप को पकड़कर लोगों की हेल्प करते थे. थर्ड वन, नाउअडेज व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर स्नेक चार्मर्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड. अभी जो स्नेक चार्मर्स है उन्हें अपनी लाइवलीहुड अर्न करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. ऐसा क्यों है? आंसर इज द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स, सो इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट फॉर स्नेक चार्मर्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड. गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, उस लॉ के हिसाब से कोई भी सांप को पकड़ नहीं सकता है और उसे अपने साथ नहीं रख सकता है. इसीलिए स्नेक चार्मर्स के लिए अपनी लाइवलीहुड अर्न करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है. फोर्थ वन, टुडे व्हाट डू स्नेक चार्मर्स डू विद देयर नॉलेज अबाउट स्नेक्स. स्नेक चार्मर्स के पास स्नेक्स के बारे में जो नॉलेज है उसे वो किस तरह से यूज करते हैं? आंसर इज टुडे स्नेक चार्मर्स शेयर देयर नॉलेज अबाउट स्नेक विद चिल्ड्रन हु लिव इन विलेजेस एंड सिटीज. दे टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ स्नेक्स एंड हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स. स्नेक चार्मर्स गांव में और शहरों में रहने वाले बच्चों को स्नेक्स के बारे में नॉलेज देते हैं. वो उन्हें समझाते हैं कि कभी भी उन्हें सांप से डरना नहीं चाहिए और जहरीले सांप को किस तरह से पहचानना है ये भी वो उन्हें सिखाते हैं. नेक्स्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग एनी एनिमल शो.
अगर आप किसी एनिमल का शो देखते हैं तो आपके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? आंसर इज मैनी क्वेश्चंस कम टू माई माइंड आफ्टर सीइंग एनी एनिमल शो. सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. एनिमल्स शो देखने के बाद में मेरे माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं. उसमें से कुछ क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन इज इट फेयर टू एक्सप्लॉइट एनिमल्स फॉर आवर एंटरटेनमेंट? हमारे एंटरटेनमेंट के लिए क्या किसी एनिमल को एक्सप्लॉइट करना, उसका शोषण करना सही है? नेक्स्ट वन, हाउ वर दोज एनिमल्स कॉट? जिन एनिमल्स का शो हम देखते हैं उन्हें किस तरह से पकड़ा गया है? थर्ड वन, हाउ वर दोज एनिमल्स ट्रेन्ड? उन्हें ट्रेनिंग किस तरह से दी गई है? फोर्थ वन, डू सर्कस पीपल हैंडल दोज एनिमल्स विद प्रॉपर केयर? सर्कस के जो लोग होते हैं वो सर्कस में यूज़ किए जाने एनिमल्स को अच्छे से रखते हैं, क्या उनकी वो प्रॉपर केयर करते हैं? लास्ट वन, वुडंट इट बी बेटर इफ ऑल दोज एनिमल्स वर सेट फ्री? अगर उन सभी एनिमल्स को फ्री किया जाए, उन्हें जंगल में उनके हिसाब से रहने दिया जाए, तो क्या वो सही नहीं होगा? लास्ट क्वेश्चन, रितु इज फाउंड ऑफ पैरट्स. इज इट फेयर इफ शी कीप्स अ पैरट इन अ केज एट हर हाउस? व्हाई? रितु को पैरट्स बहुत पसंद है. अगर वो किसी पैरट को उसके घर पर एक पिंजरे में रखती है तो क्या वो सही होगा? आंसर इज नो. रितु शुड नॉट कीप अ पैरट इन अ केज बिकॉज नो एनिमल और बर्ड्स वुड लाइक टू लिव इन अ केज. दे ऑल्सो लाइक टू एंजॉय देयर फ्रीडम. रितु ने पैरट को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए क्योंकि किसी भी एनिमल को या बर्ड को पिंजरे में रहना पसंद नहीं होगा. एनिमल्स और बर्ड्स को भी फ्रीली रहना और अपना फ्रीडम एंजॉय करना अच्छा लगता है. Students, here our worksheet is finished. Link of this worksheet is given in description box. You can download it from there for more practice.